Welcome students. In this video we are going to study for stereoisomerism in coordination compounds. See, as we all know that stereoisomerism is the different arrangement of atoms or group of atoms in space. But here what happens, little difference is there. Here there is the different atoms or group of atoms occupy different special positions around सेंट्रल मेटल एटम. सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है. नाउ सी, in short, by flowchart it can be understood that stereoisomerism is further divided into two categories: geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism is that in which molecular formula is same. See here, molecular formula is same but structural formula is different, है ना. Now it is again of two types, cis and trans. Cis means, see, cis is what? When similar groups are arranged on same side, whereas trans is when similar groups are arranged on different side, ना. इतना हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे दूसरे आइसोमरिज्म में. cis and trans. Cis means same side, trans means different side. Now we are going for optical isomerism. What is optical isomerism now? Optical isomerism is shown by those compounds which possess chirality, which shows compounds which shows chirality, है ना, chirality. Or we can say that compounds which are which do not show plane of symmetry, or compounds or which do not, or those compounds which do not show plane of symmetry, है ना. Optical isomerism is shown by those compounds also. Then optical isomerism is again of two types: dextrorotatory or levorotatory. Dextrorotatory means when it turns the light towards right side. When the light is turned, plane polarized light is turned toward right side, and here it is turned towards left side. Levo means left side. It is also donated by small d or plus, and it is donated by small l or minus. ठीक है. Now see, there are lots of compounds and all these compounds are divided. There are lots of compounds. These compounds are coordination compounds for geometrical as well as optical isomerism for better study. जिससे कि हम सारे कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, हमने क्या किया, कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. जैसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन. See, 4 coordination compound, geometry of 4 coordination compound is tetrahedral or square planar, whereas 6 coordination number compounds are having octahedral स्ट्रक्चर. अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को भी यहाँ पर पढ़ेंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कंपाउंड्स इतने सारे हैं, तो हमने क्या किया, सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया. हियर आई मस्ट राइट हियर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, एंड 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. तो आगे यदि हम इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझने के लिए, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इनका स्ट्रक्चर समझ लें. व्हाट इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर. नाउ सी व्हाट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सी हियर, ये देखो, ये क्या है हमारा,
ये कोई सा हमारा एक प्लेन है। रूल्ड पेज इसलिए लिया है बेटा जिससे कि प्लेन पर आपको ये अच्छे से समझ में आए। सी स्क्वायर प्लेनर का मतलब एक प्लेन है कोई सा, उस प्लेन में हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसके चारों साइड लगे हुए हैं लिगेंड। सो दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर। अब यदि हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो नाउ सी हियर दिस इज़ अवर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस इज़ वन प्लेन, ये कोई सा एक प्लेन है, इस प्लेन में एक लिगेंड हमारा ऊपर है, एक लिगेंड हमारा नीचे है। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस इज़ वन प्लेन वेयर वी आर हैविंग 4 लिगेंड्स, 1 2 3 and 4 ligands we are having, 1 ligand is here and 1 ligand is here। तो हमारे पास टोटल कितने लिगेंड्स हो गए, 6। तो अब बीच में क्या है, आप रेड स्केच पेन को मान लीजिए, एट द सेंटर इट इज़ योर सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम इज़ कवर्ड और सराउंडेड बाय 6 लिगेंड्स, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन को यदि हम यहाँ इन सब कॉर्नर्स पे यदि हम धागा बांध दें और इसको यहाँ पकड़ लें, है ना, एंड इफ़ वी होल्ड इट हेयर, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, कुछ ऑक्टाहेड्रल। देखिए यदि हम यहाँ से ऐसे पकड़ लें और यहाँ से ऐसे पकड़ लें तो आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का। तो ऐसा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखिए जब हम इसमें आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक सिस ट्रांस जो हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो एक यहाँ पर होगा, एक बॉन्डिंग हमारी यहाँ पर होगी, एक बॉन्डिंग, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, एक प्लेन हमारा नीचे की साइड है। सो टोटल वी आर हैविंग 3 प्लेन्स। हाउ मैनी प्लेन्स वी आर हैविंग, वी कैन अंडरस्टूड बाय दिस ऑल्सो। सी how many planes we are having, 1 2 and this is not good, this is much better. See here, this is one plane, this is upside is another plane and going down is another plane। तो हमारे पास 3 planes हैं। यदि एक बॉन्डिंग यहाँ हो सकती है, एक बॉन्डिंग ऊपर की साइड हो सकती है और एक बॉन्डिंग लिगेंड की नीचे वाले लिगेंड से भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, पर सबसे पहले हमको स्क्वायर प्लेनर और सी दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन होता है जिसमें ऑक्टाहेड्रल में 3 प्लेन होते हैं। दिस इज़ वन प्लेन, अबव प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सो टोटल 3 प्लेन्स, प्लेन अबव एंड डाउन, 3 यू आर हैविंग, है ना। अब समझते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब वो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं उसको समझते हैं ट्रिक के साथ। नाउ 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी पढ़ेंगे और हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पढ़ेंगे। देखो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। अब इसमें देखो हम कोई सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई सा एक हमारा सेंट्रल एटम है जो कि सराउंडेड है हमारे 4 टाइप्स के लिगेंड से, है ना। ये कोई सा हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सी इट्स स्ट्रक्चर, दिस इज अवर मेटल, ए एंड ए, है ना। दिस इज़ वन स्ट्रक्चर। क्या इसका कोई और आइसोमर हम ड्रॉ कर सकते हैं? यदि हम ड्रॉ भी करेंगे तो सेम ही होगा। देयरफॉर Ma4 विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये शो नहीं करेगा। इट विल बी शोइंग नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखते हैं, इसमें हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मीनिंग, यदि हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं ना, मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मिरर इमेज यदि हम इसकी ड्रॉ करते हैं तो कैसा इसका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही बनेगा।
सी सेम स्ट्रक्चर है ना। अब इसको यदि आप उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो दिस इमेज इज सुपर इम्पोजेबल, है ना। जब कोई सी भी इमेज सुपर इम्पोजेबल होती है तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये यहाँ लिख देते हैं, फॉर दोज कंपाउंड्स, दिस इज मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री। यदि प्लेन ऑफ सिमिट्री कंपाउंड शो कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमिट्री का मीनिंग देखिए, इसको आप इमेजिनरी लाइन यदि आप ड्रॉ कर देंगे, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सी दिस मीन्स दिस कंपाउंड इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमिट्री, दिस मीन्स इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं हाउ टू सॉल्व। If a compound shows POS, plane of symmetry is given by optically active compounds, या हम ये कह सकते हैं compounds which are having plane of symmetry, they are optically इनएक्टिव, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसमें तो 2 प्लेन ऑफ सिमिट्री हैं, दिस मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस मीन्स इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब हम दूसरी एक ट्रिक हो गई आपकी ये। अब दूसरी हम एक बात करेंगे, वो ट्रिक में देखिए, यदि हम इस कंपाउंड, दूसरा अभी एक एग्जांपल लेते हैं तब बताते हैं दूसरी ट्रिक फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए ये 3 पॉइंट्स बताए हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए। पहला चीज़, ये प्लेन ऑफ सिमिट्री यदि प्रेजेंट है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव होगा, जैसे ये कंपाउंड। अब हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ए बी बी ए बी। यदि ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखिए इसमें हमारा ये कंपाउंड कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ए कॉम्बिनेशन कैसे आप ड्रॉ करेंगे, देखिए दिस इज़ योर ए कॉम्बिनेशन, है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन, ये आपको ट्रिक बता रहे हैं बेटा हम। देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें हो गया ए, तो ए कॉम्बिनेशन है या बी कॉम्बिनेशन है या ए बी कॉम्बिनेशन, कहीं भी आपको किसी आइसोमर में मिल रहा है, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अभी आगे और देख लेते हैं कैसे समझ में आएगा। अब एक ट्रिक आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, है ना, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नाउ ट्रिक फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये ए बी क्या है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 लिगैंड्स। अब जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे उतना ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगा। ये अभी एग्जांपल के थ्रू आप बताते हैं। हम 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टेकन एग्जांपल Ma3B, दिस इज़ अवर अनदर मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें 2 लिगैंड है A3 एंड B। इसका हम स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे हम, A B 4 है ना। अब स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, देखो इसका स्ट्रक्चर A B। तो एक सेट क्या हो गया इसका, देखिए एक सेट ये हो गया, एक सेट आपका ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, देखिए एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा कॉम्बिनेशन हम एक और ड्रॉ करते हैं, A सी बोथ आर सेम। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। दिस मीन्स देयर इज़ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये वाला दिस एंड दिस बोथ आर सेम, both are same, therefore there will be no
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये हमारा सेट है। अब हमने आपसे क्या कहा था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए, हमने यदि ए ए बी बी या ए बी, यदि कोई सा भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके पास प्रेजेंट है ना, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, दिस मीन्स इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सॉरी, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये वाला कॉम्बिनेशन न ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा न ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और एग्जांपल लेके बताते हैं। अनदर एग्जांपल इज Ma2B2। ये A और B क्या है, A एंड B आर अवर लिगेंड्स, मोनोडेंटेट ligands, they are our monodentate ligands। अब इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे और ये भी ड्रॉ करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन पहले हम इसके बना लेते हैं, कितने होंगे, A B B, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा बना के देखते हैं A B एक कॉम्बिनेशन ये हो गया हमारा। नाउ सी इसका कॉम्बिनेशन देखो बेटा, कॉम्बिनेशन हियर इज ए एंड अनदर कॉम्बिनेशन इज बी बी। अब यहाँ पर देखिए इससे ज़्यादा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, एक कॉम्बिनेशन हो गया ए बी और दूसरा कॉम्बिनेशन भी हो गया आपका ए बी। क्या दूसरा कोई कॉम्बिनेशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। नाउ सी हियर, नाउ सी हियर बेटा, अब इसमें क्या है, कॉम्बिनेशंस आर, इससे ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है। अब देखिए इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, दिस इज़ वन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दिस इज़ टू, मीन्स ओवरऑल कितने आइसोमर्स हैं आपके पास, टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नाउ इफ़ वी टॉक फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए आपको क्या ट्रिक बताई थी, हमको ये कॉम्बिनेशन फॉलो करना है। ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास, देखिए यस वी आर हैविंग दिस कॉम्बिनेशन, इसका मतलब दिस इज़ ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी नहीं है और ये भी हमारा ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। दिस मीन्स दिस molecular formula will not show optical isomerism, है ना। So I think this is possible for 4 coordination compounds. In next video we will be going for 6 coordination compounds. Thank you for watching it.